So in order to provide you a training on SNA module of PFMS for the centrally sponsored scheme, I have created this presentation so that कि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आप कैसे approach करेंगे and what will be the steps that you need to perform in order to operationalize a single nodal account at the state level. The user manual that was recently launched by the PFMS division, which contained all the instructions how state departments and the SPMU offices of each state shall approach in collaboration towards the operationalization of a single nodal account. According to that user manual, departments have been instructed to approach to the SPMU departments for their schemes, and they should open up their bank accounts for those sponsored schemes as well, and each account shall be used for a single scheme. There is no option that you will be operating a single account for multiple schemes. So everything will be discussed through this presentation, and I have divided the whole presentation in some basic contents. First, I will provide you a brief introduction and on PFMS and what are the objectives, क्या आप PFMS क्यों operate कर रहे हैं, ये mandatory क्यों है, and then we will discuss the important topic that is scheme types and modules, जिसमें हम discuss करेंगे कि आप किस scheme के लिए SNA model operate कर रहे हैं और बाकी कौन सी types की schemes implement हो रही है PFMS पे. Then our focus will be towards the single nodal agency and account training. आप किस तरह से एक नोडल अकाउंट और नोडल एजेंसी को ऑपरेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्कीम रजिस्ट्रेशन एंड एजेंसी रजिस्ट्रेशन, हाउ यू विल ऑनबोर्ड योर स्कीम्स ऑन पीएफएमएस. आप स्कीम्स को कैसे ऑनबोर्ड करेंगे और आप अपनी एजेंसीज को डाउन द लेवल कैसे रजिस्टर करेंगे, उनका क्या टेक्निकल प्रोसीजर रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे इसमें. एंड देन आई विल प्रोवाइड यू ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन द ईट एंड डीबीटी मॉड्यूल, बिकॉज प्रोवाइडिंग ए फुल ट्रेनिंग ऑन ईट मॉड्यूल and DBT module is going to stretch this video for more than 2 hours. So this video will be all about the implementation of a single nodal account. And about the EAT and DBT modules, since these are the modules that all agency users have to frequently work on, इस पे आपको हमेशा काम करना है to incur expenditure of the schemes. So I will upload videos on EAT module and DBT module in upcoming days. For that, I want you to subscribe to this channel so that you can get those videos in real time. About the introduction part of PFMS, PFMS was itself launched as a scheme known as Central Plan Scheme Monitoring System, but its name was later changed to Public Financial Management System. In 2014, PFMS was made mandatory for all central plan schemes to be implemented on this platform. So today, PFMS can be simply defined as an online transaction platform or online transaction software, which has been designed by the NIC and it's being implemented by PFMS division through Ministry of Finance. The main objective of PFMS is that it's integrated with the core banking system. Almost all nationalized banks have been integrated with the PFMS so that agencies can perform payments to the vendors and beneficiaries in real time by registering those vendors and beneficiaries on the system itself. So PFMS एक ऐसा database है जहाँ पे आप अपनी agencies register करते हैं एक scheme के लिए down the level according to the hierarchy, और आप funds ले रहे हैं government से. Now that depends आप किस level पे वो funds receive करते हैं. PFMS को launch करने का main मकसद था to reduce the float in system. PFMS made it easier to monitor all the unspent balances lying in the bank accounts of the implementing agencies in real time. इसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई है सिस्टम में जहां पे आप एफिशिएंटली अपना फंड फ्लो मैनेज भी कर सकते हैं, एंड इट आल्सो मेक्स द रिवैल्यूएशन प्रोसेस इजियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द स्कीम टाइप्स, पीएफएमएस पे आप किस टाइप्स की स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं. बेसिकली ऑल सेंट्रल प्लान स्कीम्स हैव बीन डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स. आपका पहला टाइप है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. ये वो स्कीम्स है जिनमें 100% फंडिंग होती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे आर बीइंग डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड ऑन पीएफएमएस बाय द प्रोग्राम डिवीजन ऑफ ईच मिनिस्ट्री. And second type है हमारे पास centrally sponsored schemes. These schemes are funded by both central government as well as the state government. And then we have a third type of scheme known as state government schemes or UT schemes. These schemes are entirely funded by the state government itself. So these are the basic 3 types of schemes that are being implemented on PFMS. ये PFMS का डैशबोर्ड है pfms.nic.in. PFMS के लिए 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, external users और internal users. Internal users who have their own login IDs, they log in into the PFMS and they perform different operations accordingly. External users होते हैं आपके vendors या beneficiaries और the NSP students. For the external users, there are some options on the dashboard. Like the first option is know your payments. यहाँ पे आपके beneficiaries और vendors अपना payment status check कर सकते हैं. उनका actual में एक passbook generate होता है जिसमें पूरा record रहता है all the transactions that have been done via PFMS, the stats of those transactions. And then there is another option track NSP payments. यहाँ पे students अपना scholarship status check करते हैं using their NSP ID or registered bank account number.
एक और ऑप्शन है गेट लॉगिन डिटेल्स इफ एजेंसी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये ऑप्शन फर्स्ट लेवल एजेंसी के लिए होता है जो कि रजिस्टर होती है फॉर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्रॉम इट्स स्कीम मैनेजर। यहाँ पे वो अपना एडमिन क्रिएट करते हैं। एंड देन देयर इज एन अनदर ऑप्शन मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी। यहाँ पे आप किसी भी स्कीम के अंडर किसी भी स्टेट में कौन कौन सी एजेंसी रजिस्टर है उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक योर ओन एजेंसी इफ यू हैव द बैंक अकाउंट नंबर registered for any scheme. I have already uploaded a video on this option, manage registered agency, which you can check in the playlist. And for the internal users of PFMS, this is the option where they log in with their login IDs. अब हम बात करेंगे मॉड्यूल्स ऑफ PFMS इम्प्लीमेंटेशन। PFMS को आप ऑपरेट करते हैं इन 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स, और ये मॉड्यूल्स हमने डिवाइड किए हैं इन 3 ग्रुप्स। इसमें एक ग्रुप है स्कीम एंड एजेंसी रजिस्ट्रेशन, where the schemes are being onboarded on PFMS and agencies are registered according to the hierarchy. And this module is a one time process. आपको ये दोबारा से रिपीट नहीं करना होता है। एक बार आपने स्कीम को ऑनबोर्ड कर दिया एंड यू हैव रजिस्टर्ड योर एजेंसीज फॉर दैट स्कीम, उसके बाद आपको ये प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है अनलेस देयर इज एनी नीड टू रजिस्टर एनी अदर एजेंसी। एंड देन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉड्यूल्स और ईट एंड डीबीटी मॉड्यूल, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं लाइक एक्सपेंडिचर, advance and transfer, and in DBT module you make the payments to the beneficiaries. So we will first know how schemes are being onboarded on PFMS. I've already discussed that we have 3 basic scheme types that are being implemented on PFMS. उसमें हम पहला टाइप लेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का। आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को किस तरह से PFMS पे ऑनबोर्ड करते हैं, उनको किस तरह से ऑपरेट करते हैं आप। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए PFMS पे उसका एक सेंटर कोड होता है, 4 डिजिट कोड, और सेंटर में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम डिवीजन होता है। ये हर किसी मिनिस्ट्री के पास अपना अपना अलग प्रोग्राम डिवीजन सेल होगा। नाउ व्हाट दे डू, दे डायरेक्टली रजिस्टर द फर्स्ट लेवल एजेंसी फॉर दैट सेंट्रल सेक्टर स्कीम यूजिंग दैट सेंटर कोड। वो हर किसी स्टेट में एक फर्स्ट लेवल एजेंसी को रजिस्टर करते हैं। दिस फर्स्ट लेवल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की और फंड फ्लो, फर्स्ट लेवल एजेंसी अपनी चाइल्ड एजेंसीज को रजिस्टर करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। एंड इफ द हायरार्की अलाउज दे आल्सो रजिस्टर देयर ओन चाइल्ड एजेंसीज। तो इस तरह से चाइल्ड एजेंसीज रजिस्टर होती है डाउन द लेवल अकॉर्डिंग टू द हायरार्की इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर किसी एजेंसी के पास अपना एक डेडिकेटेड स्कीम स्पेसिफिक बैंक अकाउंट होता है जो वो रजिस्टर करते हैं उस स्कीम के साथ। दैट मीन्स जिस लेवल पे भी आप एजेंसीज को रजिस्टर करते हैं, आप वहां पे बैंक अकाउंट्स ओपन करके उस स्कीम के साथ उन बैंक अकाउंट्स को रजिस्टर करते हैं। एंड आफ्टर दोज बैंक अकाउंट्स आर बीइंग रजिस्टर्ड, आपकी फर्स्ट लेवल एजेंसी में जब आपके फंड्स रिसीव होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां से आप ट्रांसफर करते हैं टू योर इमीडिएट नेक्स्ट लेवल चाइल्ड एजेंसीज थ्रू द PFMS यूजिंग द ट्रांसफर मॉड्यूल। और इसी तरह से these child agencies will in turn transfer those funds to their own next level child agencies. तो इस तरह से एक फंड फ्लो मैनेज होता है PFMS पे, जहाँ पे फर्स्ट लेवल एजेंसी रिसीव फंड्स करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड PFMS के थ्रू वो उन फंड्स को ट्रांसफर करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और चाइल्ड एजेंसीज। तो इस तरह से आप एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी एक सेंटर कोड होता है सेंटर में, 4 डिजिट कोड, but they are not being directly operated using that center code. Rather, a linked scheme is being created. Centrally sponsored schemes को implement करने के लिए state government treasuries have been integrated with the PFMS, and SPME offices, the state project management units, have been set up throughout the India in all states. The integration of state treasuries with the PFMS is known as treasury integration. In order to onboard any centrally sponsored scheme, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अप्रोच करते हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को विद देयर सेंट्रल कोड ऑफ दैट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो SPME ऑफिसेज उनके लिए एक स्टेट लिंक्ड स्कीम जनरेट करते हैं विद अ न्यू स्टेट कोड। उस स्कीम को वो लिंक करते हैं विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल कोड, और वो उनकी हायरार्की को क्रिएट करते हैं टेक्निकली, एंड दे आल्सो माइग्रेट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट स्कीम इन दैट न्यू स्टेट लिंक्ड स्कीम। There are also some other users of PFMs in each state, जैसे कि आपका SFD यूजर यानी कि स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजर, वो हर किसी डिपार्टमेंट में एक SSM यानी कि स्टेट स्कीम मैनेजर को क्रिएट करते हैं in order to manage all the sponsored schemes as well as state schemes of that department. और इसी तरह एक और यूजर होता है एजेंसी अप्रूवर। So after the registration of a state linked scheme for a centrally sponsored scheme in any state, the department is being asked to propose the fund flow or the hierarchy.
और हर कोई डिपार्टमेंट अपनी स्पॉन्सर्ड स्कीम का फंड फ्लो प्रपोज करते हैं एंड दे प्रोवाइड इट टू द एसपीएमई ऑफिसेस व्हिच टेक्निकली क्रिएट दिस हायरार्की ऑन पीएफएमएस। हायरार्की क्रिएट करने के बाद देन कम्स द पार्ट ऑफ द स्टेट स्कीम मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद स्टेट स्कीम मैनेजर हर किसी स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी को रजिस्टर करते हैं एट द स्टेट लेवल, और इसी सिंगल नोडल एजेंसी में आप अपना सिंगल नोडल बैंक अकाउंट भी रजिस्टर करते हैं एक स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। दैट मीन्स आपके डिपार्टमेंट में जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हर किसी स्कीम के लिए आपको अलग अलग एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड single nodal bank account open करना है, and that bank account needs to be registered on the PFMS in a single nodal agency. Then after the approval of that agency by the agency approver level 2, उसके बाद आप funds लेते हैं from the state treasury by the advance withdrawal. Now, according to the hierarchy, if the hierarchy allows कि आपको child agencies register करनी है next level पे, यानी कि district level पे, तो आप nodal agency के admin के through अपनी child agencies को register करते हैं down the level, और इनको hierarchy में map करते हैं accordingly. और अगर आपको ब्लॉक लेवल पे भी एजेंसीज रजिस्टर करनी है तो दीज डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज विल रजिस्टर देयर ओन चाइल्ड लेवल एजेंसीज एट द ब्लॉक लेवल ऑफ द हायरार्की. Now the major difference between the implementation of a central sector scheme and a sponsored scheme is that there is only a single saving bank account at the state level. उसके नीचे जो आप चाइल्ड एजेंसीज रजिस्टर करते हैं स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, उनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होगा. इफ द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स अलाउ, आप उनके लिए जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं. दैट मीन्स आपके फंड्स हमेशा स्टेट नोडल एजेंसी के पास रहेंगे और आप वो फंड्स नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे जिस तरह से आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में करते हैं या जिस तरह से आप इससे पहले स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी करते थे. नाउ द प्रोसीजर इज, आप सिर्फ ड्राइंग लिमिट प्रोवाइड करेंगे टू योर चाइल्ड एजेंसीज डाउन द लेवल, और दे विल इन टर्न ट्रांसफर दैट ड्राइंग लिमिट टू देयर ओन रेस्पेक्टिव चाइल्ड एजेंसीज अकॉर्डिंगली. तो इस तरह से आप चाइल्ड एजेंसीज को सिर्फ ड्राइंग लिमिट सेट करेंगे, बट आपका अमाउंट हमेशा सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक अकाउंट में रहेगा. और जहां पे आप फंड्स फाइनली यूटिलाइज करते हैं दैट बिकम्स द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, और आप फंड्स को यूटिलाइज किसी भी लेवल पे कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्कीम एंड चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट. किसी स्कीम में आप स्टेट लेवल पे भी एक्सपेंचर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करते हैं, बट किसी स्कीम में आप सिर्फ एक्सपेंचर करते हैं ब्लॉक लेवल पे. सो द एजेंसी दैट्स क्रिएटिंग द एक्सपेंचर बिकम्स द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को एक्सपेंचर करने के लिए अपने वेंडर्स और बेनिफिशियरीज पीएफएमएस पे रजिस्टर करने होते हैं या मैप करने होते हैं. एंड वंस दोज वेंडर्स और बेनिफिशियरीज हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएफएमएस, आप उनके लिए पेमेंट फाइल्स जनरेट कर सकते हैं एंड दैट विल मार्क द एक्सपेंचर ऑफ दैट स्कीम. सो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन पीएफएमएस. नाउ बात करते हैं ट्रेनिंग के मेन टॉपिक पे, दैट्स ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए सिंगल नोडल अकाउंट एंड ए सिंगल नोडल एजेंसी फॉर ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट इन मार्च 2021 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस released an official memorandum which is displayed on your screen regarding the new procedure for the release of funds for centrally sponsored scheme. And in that OM, it has been clearly stated that all centrally sponsored schemes shall be implemented using a single nodal account and a single nodal agency at the state level. दैट मीन्स जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है एक स्टेट में, एक स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, हर किसी स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए आपको एक सिंगल नोडल अकाउंट ओपन करना है एंड दैट नोडल अकाउंट शैल बी रजिस्टर्ड इन ए सिंगल नोडल एजेंसी एट द स्टेट लेवल ऑफ द हायरार्की. एंड डाउन द लेवल एजेंसीज, यानी कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आप रजिस्टर करते हैं, दे विल आइदर यूज द SNA डायरेक्टली और दे कैन यूज द जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट्स. Those implementing agencies won't be using any bank account at all, but depending upon the operational requirements, आप उनके लिए zero balance subsidiary bank accounts open कर सकते हैं. Those accounts will always remain zero. आप पहले उनमें funds transfer नहीं कर सकते हैं. So what are the prerequisites or steps that need to be performed for the operationalization of a single nodal account by the state departments? आपको पहले confirm करना है that जो स्कीम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग ए सिंगल नोडल अकाउंट, दैट स्कीम शुड बी स्ट्रिक्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और आपको ये कंफर्म करना है कि उस स्कीम के लिए आप स्टेट लेवल पे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज नहीं कर रहे हैं. देयर शुड बी ए सिंगल अकाउंट एट द स्टेट लेवल. अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, यू हैव टू ओपन अप द बैंक अकाउंट फॉर दैट स्टेट लिंक्ड स्कीम एट द स्टेट लेवल फर्स्ट, एंड यू हैव टू डिक्लेयर दैट दिस इज द अकाउंट दैट शैल बी यूज्ड एज ए सिंगल नोडल अकाउंट फॉर दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो बैंक अकाउंट आप किसी और स्कीम के लिए यूज नहीं करेंगे. और अगर आपके पास मल्टीपल स्कीम्स है तो हर किसी स्कीम के लिए आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है एट द स्टेट लेवल, विच शैल बी डिक्लेयर्ड एज सिंगल नोडल अकाउंट. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलरेडी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है पीएफएमएस पे,
and you have your implementing agencies registered down the level with their own saving bank accounts. So first step that you need to perform is कि आपको सारा बैलेंस रिकूप करना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था. फ्रॉम योर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बैंक अकाउंट्स आपको पूरा अमाउंट रिवर्स करना है to the single nodal agency's bank account. After that, those bank accounts shall be either closed permanently or they can be converted to the zero balance subsidiary accounts if the State Department proposes that. So in order to operationalize a sponsored scheme for the SNA mode, आपके लिए क्या requirements हैं? First of all, you should make sure कि आपकी linked scheme registered from the SPMU department और आपकी hierarchy created है. And then comes the part जहाँ पे आप SNA को पहले declare करते हैं और उसके बाद उस ऑफिस को या उस लेवल को आप एज एन एजेंसी रजिस्टर करते हैं PFMS पे एट द स्टेट लेवल. आप जो SNA डेजिग्नेट करते हैं वो ऑलरेडी PFMS पे रजिस्टर होना चाहिए. जो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि आपके स्टेट स्कीम मैनेजर से आपकी फर्स्ट लेवल एजेंसी को रजिस्टर करते हैं आप, और आप उसी एजेंसी की डिटेल्स आगे प्रोवाइड करते हैं दैट दिस विल बी द एजेंसी विच विल एक्ट एज अ सिंगल नोडल एजेंसी फॉर दिस स्टेट लिंक्ड स्कीम और दिस स्पॉन्सर्ड स्कीम. एजेंसी को रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू डिक्लेयर ऑल द डिटेल्स टू द SPMU ऑफिस कि आपने एजेंसी रजिस्टर की है विद दिस यूनिक कोड, और आपने जो बैंक अकाउंट ओपन किया है फॉर दिस स्पॉन्सर्ड स्कीम विच विल बी ऑपरेटेड एज अ सिंगल नोडल अकाउंट, आप वो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं टू द SPMU डिपार्टमेंट एंड दे विल गेट दैट स्कीम एनेबल्ड फ्रॉम द PFMS हेडक्वार्टर्स इन द SNA मोड. SNA मार्क करने के लिए जो डिटेल्स डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करनी है टू द SPMU ऑफिस एक स्कीम के लिए, वो डिटेल्स दिए हैं. आप पहले उस स्कीम का सेंट्रल कोड डिक्लेयर करेंगे जो स्कीम आप ऑपरेट कर रहे हैं SNA मोड में, एंड देन द स्टेट लिंक्ड स्कीम नेम जो आपने रजिस्टर किए अपने स्टेट में फ्रॉम योर SPMU डिपार्टमेंट. आफ्टर दैट यू हैव टू डिक्लेयर द एजेंसी नेम जो आपने डिक्लेयर किए, दिस विल बी द SNA एजेंसी ऑफ दिस स्कीम. वो उस एजेंसी का आप नाम प्रोवाइड करेंगे और उस एजेंसी का यूनिक कोड PFMS पे जो जनरेट हुआ है वो आप प्रोवाइड करेंगे, एंड देन द बैंक डिटेल्स. अब जो बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है एट द SNA लेवल, वो बैंक डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट्स द पेमेंट प्रोसेस व्हेन द स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड इन SNA मोड. SNA मोड में मैंने आपको बता दिया था यू हैव टू चॉइसेस, आइदर टू गो फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डायरेक्टली यूजिंग द SNA बैंक अकाउंट और यू कैन ओपन जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट्स फॉर दोज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज. दोनों केसेस में आपका पेमेंट प्रोसीजर डिफरेंट होगा. हम पहला केस लेंगे जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को विदाउट बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर करते हैं और उनमें डायरेक्टली SNA को मैप करते हैं. दैट मीन्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज डायरेक्टली SNA के थ्रू पेमेंट्स करेंगे. बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है जब आप पेमेंट फाइल को जनरेट करते हैं. लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एन एजेंसी नंबर 4 एट द लास्ट लेवल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. अगर ये किसी वेंडर के लिए या बेनिफिशियरी के लिए पेमेंट फाइल जनरेट करते हैं तो उस प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे इनका सिग्नेचर वर्क नहीं करेगा. उस PPA पे सिग्नेचर करने के लिए इन्हें वो प्रिंट पेमेंट एडवाइस सिंगल नोडल एजेंसी के पास भेजनी पड़ेगी फॉर द सिग्नेचर पर्पज. And then the single node agency, after signing that print payment advice, has to submit that advice to the bank, or bank will make the payment to the vendor or beneficiaries, और उतना ही पेमेंट करेंगे जितना उस print payment advice में mention है. Now the problem is if the agency count at the implementation level is much bigger, अगर आपके पास more than 10 or 20 or 50 agencies हैं, तो सभी एजेंसीज की प्रिंट पेमेंट एडवाइसेस को साइनिंग के लिए सिंगल नोडल एजेंसी के पास आना होगा और वही बैंक में उन प्रिंट पेमेंट एडवाइसेस को सबमिट करेंगे. और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में डिजिटल सिग्नेचर की एनरोल कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली साइन द प्रिंट पेमेंट एडवाइसेस यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर, और उसमें आप उस प्रोसीजर में आपको फिर प्रिंट पेमेंट एडवाइस सिंगल नोडल एजेंसी को फिजिकली सेंड नहीं करने की ज़रूरत है. आप अपना डिजिटल सिग्नेचर की यूज़ करके उन प्रिंट पेमेंट एडवाइसेस पे डिजिटली साइन करके डायरेक्टली ऑनलाइन बैंक में सेंड कर सकते हैं, जहां से आपकी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. तो ये पेमेंट प्रोसेस रहेगा फॉर दोज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और फॉर दोज स्कीम्स जहाँ पे आप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, which is the single nodal bank account. Next choice is जो हमारा recommended choice है to the departments. आप अपनी implementing agencies में zero balance subsidiary bank accounts operate करते हैं.
अपार्ट फ्रॉम द सिंगल नोडल अकाउंट, जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होगा इन द सिंगल नोडल एजेंसी, जो आप नीचे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रजिस्टर करते हैं डाउन द लेवल, उनमें आप जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। अब इनमें पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, कंसिडरिंग अगर आप एजेंसी नंबर 4 यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इफ दे आर जनरेटिंग एनी पेमेंट फाइल टू एनी वेंडर और बेनिफिशियरी, ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे आप फॉर्मली यूज़ करते थे, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेट करते थे, और वहाँ पे आपको एजेंसी अकाउंट चॉइस में आप सेल्फ सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे भी आपका वही प्रोसीजर रहेगा। आप यहाँ पे सेल्फ बैंक अकाउंट चूज करेंगे टू क्रिएट एनी पेमेंट फाइल, और जब आपका प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट होगा उस पर आप ही सिग्नेचर करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग बैंक ब्रांच में वो सबमिट करेंगे, जहाँ पे आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन होगा। द ओनली थिंग इज, जिस बैंक में आपका सिंगल नोडल एजेंसी का बैंक अकाउंट होगा उसी बैंक में आपका जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। This has been already declared in the official memorandum that all the zero balance subsidy bank accounts shall be in the same bank जिसमें आपका SNA होगा। So after submitting that print payment advice, the signed copy of that print payment advice, जब implementing agency का data approver या signatory authority उस print payment advice पे sign करके उससे बैंक में submit करते हैं, तो बैंक अपना पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड इज द ड्राइंग लिमिट। आपको ड्राइंग लिमिट प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द सिंगल नोडल एजेंसी। आप विद इन दैट ड्राइंग लिमिट अपना प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट करते हैं, बट द बैंक विल मेक द पेमेंट प्रोसेस इन ए वे दैट दे विल चेक दिस ड्राइंग लिमिट। वो आपका ड्राइंग लिमिट पहले चेक करेंगे अपने डैशबोर्ड पे कि आपकी एजेंसी के लिए, आपके सिंगल नोडल एजेंसी की तरफ से आपको कितना एलोकेशन मिला है, यानी कि आपको कितना ड्राइंग लिमिट मिला है। इफ़ योर प्रिंट पेमेंट एडवाइस फॉलोज विद इन दैट ड्राइंग लिमिट, वो अपने डैशबोर्ड के थ्रू आपके SNA के बैंक अकाउंट से उतना ही अमाउंट फैच करेंगे जितना अमाउंट आपके प्रिंट पेमेंट एडवाइस में मेंशन होगा। और आफ्टर फैचिंग दैट अमाउंट, आपका जो सिंगल नोडल एजेंसी बैंक अकाउंट है वो डेबिट होगा, और वो अमाउंट आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट में एक ब्रीफ टाइम के लिए क्रेडिट होगा, जहां से वो उसी टाइम डेबिट होके आपके वेंडर या बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये प्रोसेस विद इन नो टाइम हो जाएगा, यानी कि आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट पार्क नहीं रहेगा। दिस बैंक अकाउंट विल बी ओनली यूज्ड एज ए मीडियम बिटवीन द SNA बैंक अकाउंट एंड द वेंडर्स बैंक अकाउंट, जहाँ पे मोमेंटरीली अमाउंट पार्क रहेगा। देयर विल बी नो इंटरेस्ट जनरेटेड फॉर दैट अमाउंट, और वो उतना ही अमाउंट फैच होगा जितना प्रिंट पेमेंट एडवाइस में आपने मेंशन किया है। इवन इफ अगर आप एक वेंडर को पेमेंट करते हैं या मल्टीपल वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, आपका जो टोटल अमाउंट बन जाता है वही अमाउंट आपके SNA से मोमेंटरीली फैच होके आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड उसी टाइम में आपके वेंडर्स या बेनिफिशरीज के अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। So this will be the payment process in case of zero balance subsidy bank accounts. For the PFMS users, आपके लिए इतना important है that you have to set the drawing limit for your implementing agencies, और आप अपनी implementing agencies में जब expenditure करेंगे आपको available balance में आपका drawing limit show होगा, and within that drawing limit आप अपना print payment advice generate कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट मच रिक्वायर्ड हियर, बिकॉज यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के सिग्नेटरी अथॉरिटीज, यानी कि जो आपके साइनिंग अथॉरिटीज होते हैं या DDOs होते हैं, वो अपनी प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे खुद साइन करके अपने लोकल ब्रांच में उस एडवाइस को सबमिट कर सकते हैं। देन द बैंक विल स्टार्ट इट्स ओन वर्क। वो जो ड्राइंग लिमिट आप PFMS के थ्रू प्रोवाइड करते हैं अपने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को, that drawing limit should also reflect on that bank dashboard. So this will be the payment process in case of zero balance subsidy bank accounts. This video so far has been the first part of my full presentation on PFMS and training that I will be providing how to use the EAD module and DBT module for both cases, for the old module as well as the SNA module. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑब्वियसली आल्सो लाइक दिस वीडियो एज वेल। आई होप कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और आपको एक प्रैक्टिकल सेशन प्रोवाइड होने के बाद आप अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे कि आप SNA को कैसे ऑपरेट करेंगे एक स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। एंड टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।